So now like we are going to do this thing, like show you how to impress a person like with your body language, right? So first we'll have like how you're going to show the other person that you're quite confident and you're not nervous at all. There are few body languages which we need to take care while we are meeting new person to tell them that we are quite confident. First of all is the handshake, okay? So how do we do the handshake thing? Like tighten up or like loosen up? How? Can you come and just shake a hand with me? Okay. Yeah. This is. Yeah. Is this fine or this is fine? This is fine for me. Okay. You should be like a little loose, right? Okay. It's just a normal one. Yeah. Okay. If we shouldn't like show the power of to the other person who is going to take our interview or our friend or someone, right? And also we should not keep our hand quite loose, क्योंकि अगर हम अपना हाथ लूज रखेंगे तो अगला बंदा जज कर लेता है कि हम नर्वस हैं. जब भी हम when we walk in for the interview, not here like in somewhere out companies, first thing which we do is we shake hand with the interviewers. वो हमारे हैंडशेक से ही पहले जज कर लेते हैं कि आर वी कॉन्फिडेंट एंड हम कॉन्फिडेंट है या नहीं. अगर हमारा हैंडशेक लूज है और लाइक शिवरिंग हैंड्स है, वो वहीं बोल देते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. पहला बॉडी लैंग्वेज जो हमारा कॉन्फिडेंस डिलीवर करता है अगले बंदे को, वो है हमारा हैंडशेक. ऑलराइट. सेकेंड थिंग विच कम इज आई कॉन्टैक्ट. जब हम किसी से बात कर रहे हैं, ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट. Like at least while we are talking, right? We should maintain a eye contact. अगर हम अपनी आंखें चुराते हैं तो सामने वाला पकड़ लेता है कि हाँ भाई ये बंदा फेक है और ये झूठ बोल रहा है और समथिंग, या कॉन्फिडेंस नहीं है बंदे में, राइट? तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है. आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. वाइल यू आर टॉकिंग टू पर्सन, आई कॉन्टैक्ट रखो. जब टॉकिंग कन्वर्जेशन ओवर है या पॉज है, लुक ओवर अदर थिंग्स. बट जब कन्वर्जेशन फिर रिज्यूम होती है तो यू शुड पुट लाइक कंप्लीट कंसंट्रेशन ओवर दैट पर्सन. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ब्लिंकिंग नहीं करनी. हम ब्लिंक तब ज़्यादा करते हैं जब हम नर्वस होते हैं. जब आप आई कांटेक्ट भी बना रहे हो, मेक श्योर कि ज़्यादा ब्लिंकिंग ना हो, नहीं तो अगला बंदा जज कर लेता है कि दिस इज़ नॉट कॉन्फिडेंट पर्सन. और स्टेयर नहीं करना कि हमारी ये ना हो कि ब्लिंकिंग ना करने के चक्कर में हम अपनी फिक्स कर दें आंखें, वो फिर हम रोबोट लगेंगे या फेक लगेंगे और अगला बंदा सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा. बिकॉज लाइक 24/7 इफ यू आर स्टेयरिंग समवन, लाइक इट मेक्स द पर्सन अनकंफर्टेबल, राइट? थर्ड बॉडी लैंग्वेज होता है द वे वी स्टैंड. व्हेन वी आर मीटिंग सम पर्सन, we should not stand like this or like this or like crossing our legs. हमारी legs जो है हमारे shoulders इतनी wide open होनी चाहिए, क्योंकि if we are crossing our legs तो this show कि we are very nervous in meeting that person. अपनी legs को friends के साथ चलता है, but like official meeting or somewhere out, you should not cross your legs while you are meeting a person. और slouch नहीं करना, ऐसे नहीं खड़े होना या ऐसे नहीं खड़े होना. This show you are complete nervous. And if it's a long time, like 1 घंटे 2 घंटे के लिए खड़ा होना है, right? You can just like मतलब lean yourself but not so much, right? Weight shift करो, weight shift करो, but like movement भी रखो, अपनी movement रखो, but अपनी जगह पे वापस आओ. This thing you need to carry. मतलब body language में इन चीज़ों का ध्यान रखता है. Yeah, the shifting weight thing, right? Actually, जब 2 घंटे के लिए हमें खड़ा होना है, we can't stand like still 24/7 or like 2 hours or 3 hours like this, right? So we need to give rest. So like what we can do while talking, like I am putting my weight in right side or again the left, fine. Right? You got it? Now next thing is when we are meeting some person, we have to act welcoming. That yes, I'm glad you're meeting me and that all sort of things. For that we'll have a presentation. It's like first thing is never cross your arms when you're meeting a person. अगर आपने अपनी arms cross कर दी है तो इसका मतलब है you are not interested or you are just closing off this conversation and you want to leave. First thing is keep your arms uncrossed. And second, align your body toward a person you are communicating. If I'm standing like this, like it's not nice, right?
it's not looking good. So you shouldn't do ever in front of any official person. It's okay with the friends, but कभी भी किसी भी official बंदे के सामने कभी मत करो. और अपनी body align your body angle toward a person you are talking. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी तरफ हूँ, उनसे बात करूँगा, हल्का सा टिल्ट करूँगा, राइट? तो जिस बंदे से बात करते हो फोकस उस पे करो, आंखें उसकी आंखों में डालो, ठीक है? और सबसे पहली बात, अपने हैंड मूवमेंट्स को जारी रखो. दिस शो कि आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वड हैं. और एक फ्लो निकलता है तुम्हारी बॉडी से, एक एनर्जी निकलती रहती है, फ्लो होती रहती है. ठीक है. नेक्स्ट. और वन मोर थिंग, जब आप, हाँ जी, well, like if I'm talking and like I'm showing you that this is the thing, so this is the excess thing, like it's okay, like I was going there and like, you know, it was kind of fun. This is cool. If I would have joined like it was fun, like this is fake, है ना? Okay. मतलब अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अगर हम पैशनेट अपनी कन्वर्सेशन को लेके, तो हैंड मूवमेंट जरूर होना चाहिए. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं और हमारा हैंड मूवमेंट होता है, अगर हम एक दो गलतियां भी कर देते हैं, वो आधे बंदे का दिमाग हमेशा 50% हमारे हाथों पे होता है और आधी हमारी बातों पे. तो आधी चीजें वो समझ नहीं पाता अगर हम क्या गलत बोलते हैं क्या सही. सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ योर हैंड मूवमेंट. यू शुड हैव अ परफेक्ट हैंड मूवमेंट एक्चुअली. ओके. एंड दूसरी बात, इफ यू आर इन अ ग्रुप, सिटिंग इन अ ग्रुप, और फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है वेयर टू अलाइन माय बॉडी एंड वेयर, क्योंकि आप सबसे बात कर रहे हो, आप सबसे, है ना? और हम जैसे व्हेन आई टोल्ड कि व्हेन यू टॉकिंग टू समवन, अलाइन योर बॉडी. ग्रुप में मेक अ आई कांटेक्ट विद एवरीवन. ग्रुप में यू कांट लाइक टॉकिंग टू दिस देन दिस, यू कांट मूव लाइक दिस. ओके. सो उसमें क्या है, अगर कोई और बंदा जिसको आप चाहते हो कि इम्प्रेस करना है, बस अपनी बॉडी उसकी तरफ अलाइन कर दो. जिस बंदे को इम्प्रेस करना है, अलाइन योर बॉडी टुवर्ड दैट पर्सन. रेस्ट ऑफ ऑल के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है? और अगर कोई बंदा उस एंगल पे है कि यू कांट अलाइन योर बॉडी, एटलीस्ट मेक एन आई कांटेक्ट इन टॉक, ठीक है? इससे अगला बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब उसको ये बताती है कि यू आर इंटरेस्टेड, दो आई कैन नॉट मूव टुवर्ड यू बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन यू. बट व्हाट वी कांट डू इज, हम जैसे आई एम टॉकिंग टू हर, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर बट आई कांट डू दिस, राइट? दिस इज समथिंग डिफरेंट. We can't do it, or we can't stand like this because it's not meant to be like this. लीन हो पर ज़्यादा नहीं कि अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए. ओके. वी हैव टू लीन. मेन इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज यही है. अगर कोई बात कर रहा है और आपने उसको बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी बातों में, लीन अ बिट, ठीक है? इफ़ यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, टेबल पे थोड़ा लीन करो. ये नहीं कि अब उस बंदे पे चढ़ के ही लीन करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू. टेबल पे थोड़ा लीन कर लोगे तो अगले बंदे को इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है? जब भी किसी से बात करते हो, ऐसे नहीं कि लाइक द पर्सन इज टॉकिंग टू मी, मैं ऐसे बैठ के बोल रही हूँ हाँ ठीक है. तो इसमें थोड़ा एरोगेंस भी शो होता है, मेरा डिसइंटरेस्ट भी कि यार खत्म करो बातें, आई वांट टू लीव. Like if she is sitting and I'm here, right? So what I'll do is I'll sit in this thing, this position. We'll bit lean and we'll talk. अगर पीछे हो रहे हैं तो I'm giving clear indication that I'm no more interested or like you just please. And if she is in front of me, I will never cross my legs. Try I'll be not to sitting cross like your this. legs. Okay. A bit leaned ahead. All right. Right. And then we have our body language जो बताती है अगले बंदे को कि I am kind toward you, positiveness दिखानी है. दो बंदे बात कर रहे हैं. First of all, conversation में बड़ा important है, mirror करो उसकी image. If the friend is sitting this way, है ना, like you said. Yeah. He is my friend or a person. I'll take the same thing. Yeah. If he is sitting this way, I can copy this person. ये नहीं कि he is sitting this way और मैं official mood में बैठी हूँ ऐसे बातें करने के लिए. Official things are only with the boss and with the employees. जब इंटरव्यू पे जाते हैं, जैसे वो बैठे हैं, you mirror them. When you are with your friend, जैसे वो बैठे हैं, you mirror. If your friend is leaning, you also lean. If your friend is with crossed arm, you also cross your arm. इसमें ये इस बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हो बातों में, ठीक है? इंटरव्यू में जाते हो, जिस पोस्चर में वो होते हैं, आप उस पोस्चर में बैठो. ये नहीं कि वहाँ जाके लीन कर दिया. ऑलराइट. और फ्रेंड्स के सामने ये नहीं कि इंटरव्यू पोस्चर में बैठे हैं उसको, है ना, और वो लीन कर रहा है एंड द फ्रेंड इज गेटिंग अनकंफर्टेबल कि यार ये क्या बैठा हुआ है मेरे सामने.
ठीक है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है जो बताती है कि आई एम काइंड टुवर्ड यू, पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग. And whenever we go for the interview, right, never we should like keep our hands on the table. Never. Yeah. If you are nervous, if you are very nervous, what you can do is नीचे रखो हाथ On your lap. और अपने हाथ को जितना टाइटली हो सकता है पकड़ो, but don't let it show come in your face, right? And while you're talking, first thing जो आपकी nervousness बताती है is when you're playing with your clothes or with your hairs, doing anything. इस चीज़ से अगला बंदा जज कर जाता है कि आप nervous हो. जब आपने बताना कि I'm quite confident, keep your hands relaxed. And आपके हाथों से बहुत don't पता carry लगता a है. pen or something holding in your hand because like you'll be starting playing around. पॉकेट में कीज हैं, पॉकेट में हाथ घुसा लिया, कीज छन 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 छन. दिस इज नॉट द गुड थिंग. ऑलराइट, ये चीज़ें फिर अगला बंदा सोच रहा है कि ये तो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है और दिस इज नॉट गुड इंडिकेशन. और सबसे बड़ी बात होती है जब हम वेट कर रहे होते हैं, राइट, फॉर द इंटरव्यू, दैट्स द मतलब रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इग्नोर कर देते हैं. हम बाहर बैठते हैं, इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं. सपोज आई एम गोइंग टू सम कंपनी. मैं क्या यार 2 घंटे से बैठा दिया, क्या करूँ, फ़ोन निकाला, मैसेज किया, आई एम वेटिंग सिंस दिस लॉन्ग. We never know who is the next person sitting beside you, right? और वो कौन है और कैसे जज कर रहा हो आपको. When you walk in and you like, oh, this person was sitting out in lobby, और उसके सामने आप हेडफोन्स लगाए कानों में, बस लगे हुए हैं, मेरी टर्न आएगी तो I'll go inside. Never even play with the cell phone or something. Yeah. Just try to read a newspaper. उससे क्या होता है, अगले बंदे चाहे आप ना पढ़ो, कभी मत पढ़ो, but वहाँ आपको करना चाहिए. That वो शो करता है that like you know you are interested in world, you have the knowledge, right? वहाँ कंपनी के पैम्पलेट्स वगैरह हो, go through them. अगले बंदे को पता लगता है you're interested in their company. ये नहीं कि ये टेबल मैनर्स और सिटिंग पोस्चर हमें जाके उनके सामने ही शो करना है. Right from the beginning, from the lobby, you need to show these all things. ठीक है. और जब भी कोई जैसे you people are good in this, जैसे I'm talking and you people are nodding, you're smiling, इससे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का भी पता लगता है. This thing is the good like. And always keep a cute smile on your face, right? No, not that one. It really scared me. Okay, so this is the body languages जो हमने अभी डिस्कस की हैं. और अभी हम अब आपकी ही एक्टिविटी होगी इंट्रोडक्शन की. हाँ जी. You said earlier like someone is leaning backwards or have folded their arms, so it means they're not interested. And then you said like if your friend or someone has leaned, so you can mirror them. Yeah. What if an interviewer has crossed his arms or he's leaning back? No. Your question is right. Like if Totally. we are leaning back and like with friends and all, the difference, right? He's your boss, and the boss is always right. Yeah, that I know. Yeah. He can do whatever he wants. Yes. Because he has the authority to fire you. Yeah. So. इन चीज़ों का. If he has leaned backwards or if he has folded his Yeah. arms, so But we have. he's not that interested. No. No, Mirror. I told you to mirror the person sitting. हर जगह पे ये नहीं चलता. ये बॉडी लैंग्वेज जो वहाँ बॉडी लैंग्वेज हमने डिलीवर करनी है वही करेंगे. और जो. It's okay with your co-workers. Co-workers जो. The mirror image is good with your co-workers. Socialize हो रहे हो. The office thing is kind of with your boss. You never should mirror. वैसे. Irrespective of his position, we should be maintaining our position. Yeah. Yes. और मे बी मोस्टली ऐसा नहीं होता. अगर आते हैं इंटरव्यूज तो लीन बैक और वो तो फिर हार्डली इट हैपेंस. मे बी फिर तो वही बंदा इंटरेस्टेड, वो तो अपना शो ही कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. वो तो बंदा फिर इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग से ही आपको दिखा रहा है भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. हाँ, उसका बॉडी लैंग्वेज आपको ही बता रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड. तो फिर आप थोड़ा ना उसका बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके बोल देंगे आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन यू. और ऐसा ये दो चीजों में होता है, इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट द कैंडिडेट. द थिंग इज उसके बॉडी लैंग्वेज से तो आपको पता लग गया ना कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड. उसने अपना बॉडी लैंग्वेज डिलीवर कर दिया आपको कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्योंकि अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, हम हर चीज बहुत फास्ट करते हैं, राइट? Maybe the interviewer is faking it to test the candidate whether how he responds. Yeah. Sometimes they do it. That's why like you have to maintain yourself. Don't go with. Sometimes we need to just make our lines, boundaries, right? Yes, sir. So that's the thing. Okay. And with co-workers, you said that we should mirror what their body language.
But I don't think we should mirror their negative body language. No, as well. yes, of No. course not. Even if they are negative to us, we can hold our positions. Yes, of course. Yeah. बस यही बताने का मोटिव है कि वहाँ जाके अपनी फर्मनेस और रिजिडिटी, इट्स नॉट लाइक एवरीवेयर यू नीड टू शो. सम टाइम वो रिलैक्स है तो यू कैन गो रिलैक्स विद दैट पर्सन, ताकि वो अगला बंदा भी आपके साथ आपकी कंपनी इंजॉय कर ले. ठीक है ना. इंटरव्यू वगैरह तो वो तो फिर एकदम अलग एस्पेक्ट हो गया, तो है ना. एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, उस बंदे को आपकी आंखों में दिखना चाहिए, यस यू आर प्रिपेयर्ड एंड लाइक या यू नो अबाउट द इंटरव्यू, यू नो अबाउट द कंपनी, राइट. पहले सो रिसर्च. दिस थिंग शुड बी देयर कि अगर अगले ने तुम्हें नहीं ओके करा तो दैट हिज लॉस, दैट्स हिज लॉस, दैट्स नॉट योर लॉस. यू हैव द अदर ऑप्शंस टू, राइट. Now, should we move on? Next is like how to introduce yourself. जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगला बंदा हमारे लिए वहीं पे पिक करता है और हमारी पर्सनैलिटी अपने माइंड पे बना लेता है. क्योंकि जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं, हम अपना सारा बायोडाटा तो उसको देते नहीं है. वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो हमने 4 बातें कही हैं, वहीं से हमारी पर्सनैलिटी को अपने दिमाग में बना लेता है. तो फ्यू थिंग्स है जो हमें अपने माइंड में टेक केयर करनी चाहिए वाइल वी आर ऑन द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. ठीक है. जैसे आप में से एनीवन कैन ऑफ यू कम एंड टेल मी, सपोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, नॉट कंप्लीट प्रेजेंटेशन आई एम आस्किंग, वहाँ इंट्रोडक्शन कैसे दोगे अपनी प्रेजेंटेशन में? कैन एनीवन कैन कम एंड गिव अ डेमो? कम ऑन, लेट्स ट्राई. हाँ, ट्राई करो. एवरीबॉडी मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स नहीं निकालनी हमने, हम तो वी जस्ट टेल कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट्स नॉट. कैन एनीवन? ओके, प्लीज. Just an introduction. हाँ, जैसे प्रेजेंटेशन देनी है तो हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द पर्सन. Good evening, everybody. My name is Jyoti Gupta, and today I'm going to give a presentation on so and so topic. ऑलराइट, फाइन. यस. Okay. Okay. So anyone else? 2 slides. Nope. Next. Okay. First thing Yeah, is please. If I'm to give a class presentation. Okay. Then, good evening, everyone, respected ma'am and my dear friends. I'm here to present my topic, which is this. That's good. this thing is actually what is working while you are giving a presentation. First thing people generally do is like, good morning everyone, my topic is so and so. Nervousness पता लगती है, but like you people are quite mature, you're doing it really good. जब आप अपना presentation में introduction देते हैं, first thing is greeting and telling about who you are. Later you are going to tell about all the relevant information, why I am here, for what purpose and all. और उस टाइम पे इंट्रोडक्शन टाइम पे एटलीस्ट मेक श्योर कि आप मूव ना करो. ठीक है. अपनी पोजीशन पे खड़े हो. ओके. एंड यू गिव अ इंट्रोडक्शन. लेटर जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है, देन यू हैव टू गिव द मोमेंट्स इन बिटवीन. बट उस टाइम पे यू आर टोल्ड कि आप बैक ना करो, और मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो सबके आई कॉन्टैक्ट बनाने हैं, बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ विद एवरी वन आउट देयर. और लाइक ऐसा ना हो कि लाइक पहले ही जाके आप बोलो ये कि थोड़ा बोरिंग होगा, बट स्टिल यू नो आई एम प्रेजेंटिंग दिस थिंग. इट शुडंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेगेटिव थिंग. चाहे आपको पता है कितना भी नेगेटिव हो, बस उसको पता है पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना है, राइट. यू शुड गिव योर बेस्ट. एंड सपोज यू आर मीटिंग एनी इंडिविजुअल आउट, वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है. कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं विच वी नीड टू टेक इन माइंड, जो आप सबके माइंड में भी होंगी, बट आई शुड रिपीट देम. पहली बात तो हैंडशेक होता है, और लाइक किस जगह पे आप हो उस पर डिपेंड करता है. हर कल्चर का अपना अलग वे है ग्रीट करने का. समवेयर इट्स हग्स, समवेयर दे जस्ट डू हैंडशेक, समवेयर इज नथिंग. ठीक है. आप उसके अकॉर्डिंगली करो. इंडिया में हगिंग करना इज़ वेरी लाइक अनफेवरेबल, वो तो अगला बंदा पहले ही इनकम्फर्टेबल होकर भागेगा आपसे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कल्चर यू डू एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग टू द पर्सन. उसके साथ आई कांटेक्ट बनाओ. और द थिंग इज़ कि अपनी टोन, अगर जैसी उसकी सॉफ्ट टोन है, ये नहीं वो धीरे से बोल रहा है, आप ज़ोरों शोरों से लगे हैं,
कि वो बंदा कहे या आई एम गेटिंग सो एम्बेरस्ड कि दिस पर्सन इज स्टीलिंग द टेंशन ऑफ एवरीवन। अपनी टोन उसके साथ पूरी कोऑर्डिनेट रखो जब आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और बस अपने बारे में ही नहीं बोलना। ट्राई टू आस्क अबाउट दैट पर्सन फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाई यू आर है, व्हाट यू डूइंग, ठीक है, इससे गुड इम्प्रेशन जाता है। और लाइक फर्स्ट थिंग यू डू इज़ लाइक हाई आई एम योर नेम, लाइक हाई आई एम नीलिंदा कौर, व्हाट्स योर गुड नेम। नेवर इग्नोर दिस थिंग कि अपना नाम बता दिया और अगले का पूछा ही नहीं है। जैसे ही अगला बंदा अपना नाम बताता है तो यू शुड से इट्स प्लेजेंट टू मीट यू व्हाटसोएवर द नेम इज़, उसका साथ में उसका नाम भी बोलना है, ठीक है, उस टाइम पे। इससे अगला बंदा प्रॉपर इनटू कन्वर्सेशन आ जाता है और कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है ना, दिस थिंग्स। रेस्ट नाउ वील डू द प्रेजेंटेशन थिंग, बिकॉज मोस्टली हम कॉलेज में प्रेजेंटेशन के साथ ही आके उलझते हैं एंड वी लाइक हाइड आवरसेल्फ की प्रेजेंटेशन है कल मेरी ये वो। तो फ्यू थिंग्स वील गो एंड डिस्कस अबाउट दिस थिंग। मैंने प्रेजेंटेशन क्लिप्स देखी जैसे बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं उसमें प्रेजेंटेशन में। हर किसी की प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई गड़बड़ी मिल जाती है, कुछ तो देख के बोलने लगे होते हैं, राइट, दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग अस ऑल। हम नोट्स पे स्टिक रहते हैं, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज़ नोट्स में स्टिक रहने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी ऑडियंस की तरफ बैक होती है, तो वी आर रीडिंग फॉर आवर सेल्फ ओनली, उनसे तो हमारी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, ठीक है ना। दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। कैन यू प्ले द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट द पोस्चर, जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको अपनी पोस्चर का टेक केयर करना होता है। डोंट स्वे like the thing is this posture ka, right, presentation, like if the slide is going on, मैं ऐसे करके किसी को बता रहा हूँ, भाई पीछे अगला क्या कर रहा है I don't know, right, so we should take care of it, we should be prepared। हमें बस ऐसे सीधे खड़ा रहना है, हल्का सा टिल्ट करके we should face the person whom we are talking and like we should show them what we are trying to make them understand, right, ऐसे होना चाहिए। और दूसरी बात ये, जैसे आई कांटेक्ट उस बंदे के साथ में बनाया, रैंडमली गो विद द राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सेंटर, रैंडमली डू दोज थिंग्स, राइट। और फिर बीच में बंदे को एक आधा क्वेश्चन भी पूछ लो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, डू यू हैव एनी सजेशंस। हम क्या हर चीज बंदे को इन्वॉल्व करो अपने में। हम मोस्टली प्रेजेंटेशन छत को देख के दे देते हैं, बिना ऑडियंस की तरफ देखे, या कोई फ्रेंड बैठा है बस फ्रेंड को देख के सारी प्रेजेंटेशन सुना दी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अपने फ्रेंड से, और बाकी बंदे फिर बोर ही हो रहे होते हैं। प्लीज़ ये चीज़ को अवॉइड करना होता है। एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड्स अपनी आई साइट हर एक बंदे पे फिक्स रखनी है, ठीक है। और इससे आपको पता लगता है अगर बंदे नॉट कर रहे हैं तो यू गेट टू नो कि वो हमारी इसमें प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड हैं। बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, जहाँ खड़े हो ट्राई टू स्टे ऑन दैट प्लेस फॉर द मैक्सिमम, पर ज़्यादा नहीं, बीच में मूवमेंट करो बट देन अगेन गेट बैक टू योर पोजीशन एंड स्टैंड। और अपनी हैंड मूवमेंट्स के अगर कोई मूवमेंट ज़्यादा करनी है तो हैंड्स, और वो भी ज़्यादा नहीं, अप्रोप्रिएटली अपनी हैंड मूवमेंट उनको शो करनी है। मेन थिंग होता है, जो मेन हमने प्रॉब्लम देखी है आई कॉन्टैक्ट की, ठीक है ना। प्लीज़ प्रेजेंटेशन के थ्रू आउट आई कॉन्टैक्ट ज़रूर रखा करो, ताकि हर बंदे को लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू मी एंड आई एम इन्वॉल्व इन टू दिस, ठीक है ना। इस चीज़ का प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना होता है। एंड मोस्ट थिंग इज़ योर ड्रेस, वी आर टॉकिंग अबाउट होल दैट ड्रेसिंग थिंग लेटर। प्रेजेंटेशन में मेन हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? एनीथिंग यू वांट टू नो? नेक्स्ट। Is there any pattern which we can follow for maintaining the eye contact with them? Pattern? No, Like, it should be random. It should be random actually. Random actually. Because the thing is this, the pattern from right to left, then extreme left, that's not the way, right? Just like, okay, it's according to the colors, by the way, which attracts. Attracts. Like I'll go for the red, then again the green, then like this yellow, right? So it's according to our eyes only. And when you're making a contact, ये नहीं कि अगले की ड्रेस को देख के छोड़ दिया, उसकी मुंह की तरफ देखा ही नहीं। Yeah, that's the Please biggest. make sure. आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं हम सब, ठीक है ना? ओके। how do we end the presentation?
हाँ, आई टेल यू। एंड वन मोर थिंग इज, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हैंड्स ऑन हिप्स, पीछे हाथ, पॉकेट में हाथ, ये सबसे गंदी चीज़ लगती है। जनरली मैंने देखा है प्रेजेंटेशन पॉकेट में हाथ दे के दे देते हैं कुछ लोग, पॉकेट में एक हाथ होता है, दूसरा मूव कर रहा होता है और प्रेजेंटेशन खत्म भी हो जाती है, जो टोटली रॉन्ग लगता है उस टाइम पे। उस टाइम वो बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल हुआ होता है, नर्वसनेस शो होती है पूरी उसके साथ।